हमें दो सिचुएशंस पता हैं, दो तरीके से बेबीज की डिलीवरी हो सकती है। एक तो नेचुरली हो गया और या फिर सर्जरीज के थ्रू हुआ। जो औरतें दे आर प्रेफरिंग मोर कि सर्जरी से हो जाए, क्योंकि वो जो पेन होता है नेचुरल डिलीवरी में वो अवॉइड कर सके। लेकिन ऑब्वियसली दोनों के प्रोज एंड कॉन्स अलग अलग हैं। क्या लाइफस्टाइल रखना चाहिए फॉर अ नेचुरल डिलीवरी विदाउट गोइंग फॉर द सिजेरियन वन? ये भी मिथ है कि योगा नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ इन्फ्लुएंसेस हैं जो अपने प्रेगनेंसी के थ्रू आउट योगा करते रहते हैं। योगा करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए? योगा तो सीजरियन डिलीवरीज होती हैं, इसमें इसके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो आगे चल के हमें प्रॉब्लम कर सकते हैं। लेकिन अगर वो एपिजोड में हम नहीं कर पाए, देयर इज अ टियर, अगर वो टियर हो गया तो वहाँ के सारे मसल फाइबर्स बिल्कुल डिसइंटीग्रेटेड हो जाते हैं। Hello everyone and welcome to the Voice of Women. I am your host Diya Singh and this is the podcast where we talk about health, empowerment and the challenges women face every day. Today's episode focuses on a vital topic that impacts women everywhere, which is maternal health and postpartum care. To guide us through this essential discussion, I am thrilled to be joined by a highly respected expert in the field, Dr. Rajiv Saxena. Dr. Saxena is an experienced medical professional with an MBBS, research in cardio and further studies in lung diseases from Harvard Medical School, with a wealth of knowledge in maternal and postpartum health. He is here to share practical advice and expert and insights that every mother and future mother should hear. Dr. Saxena, welcome to the podcast. Yeah, ma'am. And very excited for this wonderful discussion, sir. Sure. All right. So everybody with this, without wasting any further time, let's quickly start with all the questions which we have on a plate for sir. So starting with a very basic question, sir. हम क्योंकि postpartum में जो women के appearances में changes आते हैं उनको consider कर रहे हैं आज के discussion में, तो सबसे पहला question है कि कौन-कौन से physical changes women face करती है after the postpartum और उनके essential effects क्या-क्या दिखते हैं bodies पे? See, postpartum is a period. Let us first understand what is postpartum. Right. Postpartum is the time post-delivery, and it usually extends from 6 to 12 weeks. So that is the time when what the mother needs to come to the normal position. Right. That is the non-pregnant state. It is the complete physical and psychological plus mental recovery of various organ systems. So now when we talk about the complications can be like in vaginal delivery. The whole perineum gets stressed and may get injured also. And that injury can lead to swelling and complications in the perineal region. Perineum is the part between vagina and anus. Okay? And now, other parts which can be affected, that is vagina. There is a vaginal discharge that is called lochia, and that discharge is quite good in quantity and is bright red in the beginning. It becomes black later on after a week or so, and it becomes paler then as the time passes, and by the end of 6 weeks, it usually subsides. In case of normal delivery, it subsides by 6 weeks. In case of cesarean delivery, it may take 8 weeks. Oh, wow. Okay. Then we come to the breast engorgement. Breast engorgement is very common because first mother is usually not aware of all these things. Right. And the milk starts collecting in the milk ducts. So in first week, as the breast gets swollen because of milk, one has to be very careful because that becomes very painful also. And that pain gives a lot of discomfort to the mother. Then we come to the postpartum hair fall. That is also very common. Right. Hair fall is usually starting after second month of delivery, but by the end of 6 months it subsides. Okay. Then there are other changes which we can see, like pee and poop accidents. Because of swelling and injury of the perineal muscles, we lose control in the bladder and the bowels. So pee and poop accidents, they usually happen. But as the female keeps on recovering and then doing exercises, like the common exercise what we prescribe is Kegel exercises. That is for strengthening of the perineal muscles. So that controls the pee and poop accidents. Right. Then
there can be postpartum hemorrhage, very heavy bleeding can be there. That can give some problems like postpartum hemorrhage leading to low blood pressure or some septic shock conditions. So mother has to be careful about that also. Then there are some minor changes like temperature variations, BP variations. There can be severe hypertension in the beginning, in the first week. That gradually subsides. But if it's not subsiding, then we have to take care of that also. Right. Then there can be chances of infections, so that one has to be careful. If temperature, but that the temperature usually subsides within next 24 hours to 48 hours. If it is not subsiding, there are other associated symptoms also with temperature, like mother is having diarrhea, vomiting, nausea, then severe belly pain, severe back pain, or some urine problems, difficulty urination, or the vaginal discharge is giving a very bad smell. So that is a point of concern, and one has to be very careful and go for investigations. Right. So these are the changes what we usually see in postpartum period. राइट ऑल राइट सर, तो हमने जितनी भी चेंजेस होते हैं फिजिकल बॉडी में, आई गेस फ्रॉम हेड टू टो हमने सारी चीजें बहुत ही इन डेप्थ में कवर कर लिया है. पर प्रॉब्लम पता चल गया है तो उसका सोल्यूशन भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं. तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इन सारी चीजों को इफेक्टिवली मैनेज कैसे कर सकते हैं, स्पेसिफिकली जो न्यू मदर है, जिनका सबसे पहला बच्चा है. न्यू मदर के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसमें जैसे हम पेरिनियम से स्टार्ट करते हैं. वेजाइनल डिलीवरी में पेरिनियम इज द पार्ट जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है. इसमें अगर टाइम से हमने डिलीवरी के टाइम पे एक नॉर्मल कट होता है जिसको एपिजियोटमी कहते हैं. अगर हमने एपिजियोटमी कर दिया, प्लान्ड एपिजियोटमी कर दी, तब तो वेजाइनल डिलीवरी में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं. लेकिन अगर वो एपिजियोटमी हम नहीं कर पाए, देयर इज अ टियर, क्योंकि बेबी तो आ रहा है, पुश कर रहा हो, तो अगर वो टियर हो गया तो वहाँ के सारे मसल फाइबर्स बिल्कुल डिसइंटीग्रेटेड हो जाते हैं. वो प्रॉब्लम करता है. ठीक है. सो एपिजियोटमी हो गया तो रिकवरी अच्छी हो गई. टियर हो गया तो स्टिचेस का क्वांटिटी ज़्यादा हो गई. उसके साथ साथ क्या होता है कि अगर वेजाइनल डिलीवरी नहीं है और ये जैसे ब्रीच डिलीवरी है, जैसे मतलब ये कि सीजर है, जिस कुछ कंडीशन में जहाँ पर हमें सीजर करना पड़ता है, तो वहाँ पर जो है जो कट लगेगा एब्डोमिनल कट होगा. उसमें जो इंसिजन्स लगेंगे, जो स्टिचेस होंगी, कई बार उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो भी ध्यान देना होता है. तो हम क्या कहते हैं कि इसमें पेरिनियम की केयर के लिए हम मदर से एडवाइस करते हैं कि लोकल हाइजीन मेंटेन करनी है. एक टब ले करके ल्यूकवार्म वाटर उसमें डाल के उसमें बैठ सकते हैं. उससे जो है पेरिनियल मसल्स की रिकवरी फास्ट होती है. उसी के साथ साथ उसमें कुछ एक्सरसाइज वगैरह, जैसे केजल एक्सरसाइज का मैंने बताया था. केजल एक्सरसाइज क्या होती है, वो पेरिनियम मसल्स की कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस की एक्सरसाइज होती है. उससे क्या होता है कि पेरिनियल मसल्स की रिकवरी बहुत फास्ट होती है और मदर जो है बहुत जल्दी कंफर्टेबल फील करते हैं. अगर कोई इंसीजन है तो इंसीजन में हम ये देखना कोई डिस्चार्ज वगैरह तो नहीं आ रहा है. उस डिस्चार्ज के लिए जो ट्रीटमेंट होता है उसमें हाइजीन मेंटेन करना है, उसकी क्लीनिंग अच्छी करनी है, किसी एंटीबायोटिक की ज़रूरत है वो एंटीबायोटिक देना है. तो ये पेरिनियम और वेजाइनल पार्ट का जो हाइजीन होता है उसको इस ढंग से हम लोग मेंटेन करते हैं. उसकी रिकवरी इस तरह से होती है. ब्रेस्ट एंगॉजमेंट में क्या होता है कि जैसे एंगॉज हो रहे हैं तो बहुत पेनफुल होता है. उसमें एक तो बेबी को बहुत फ्रीक्वेंटली फीड कराना चाहिए. फ्रीक्वेंट फीडिंग से ये रहता है कि वहाँ पर जो कलेक्शन नहीं होता. कलेक्शन होगा तो वहाँ पर जो है क्लॉगिंग होगी. क्लॉगिंग से नॉड्यूल्स वगैरह बनते हैं. वो नॉड्यूल्स जो है वो अल्टीमेटली फिर एब्सेस फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो उसको हमें कंट्रोल करना. तो इसलिए हमारी मदर की जो ब्रेस्ट है वो फीडिंग के टाइम पर कम्प्लीटली एम्प्टी होनी चाहिए. जब वो फीड कराएं तो मिनिमम 15 मिनट्स का टाइम देंगे एक ब्रेस्ट के लिए, ताकि दोनों ब्रेस्ट में मिनिमम 30 मिनट्स का टाइम देंगे तो ब्रेस्ट जो है एम्प्टी हो जाएंगी और उसके बाद फिर फ्रेश मिल्क कलेक्शन हो जाएगा. और दूसरा ये है कि अगर उसमें बाई चांस कोई कलेक्शन की वजह से लम्प फॉर्मेशन है तो हॉट शावर से, हॉट कंप्रेसेस से वो ईज हो जाता है, और नहीं तो एक्सप्रेसिंग ऑफ मिल्क करना पड़ता है ताकि मिल्क वहाँ पर कलेक्ट ना हो और उनको पेन और इन्फेक्शन का चांस ना हो. हेयर फॉल के लिए जब हम बात करते हैं
तो हेयर फॉल कॉमन होता है, इसको हम प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। पोस्टपार्टम हेयर फॉल इज़ वेरी कॉमन, लेकिन हाँ हम डाइट से उसको जो है मिनिमाइज कर सकते हैं। राइट। तो डाइट हमारी अच्छी होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, आयरन रिच होनी चाहिए, प्रोटीन्स वगैरह उसमें ज़्यादा होने चाहिए ताकि हमारी टिश्यू इंजरीज की रिपेयर अच्छी हो जाए। और जो प्रीनेटल वाइटामिन्स हमारे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी चल रहे हैं उसको हमें कंटिन्यू करना चाहिए। हेयर्स के लिए हमें बहुत सॉफ्टली हेयर्स को मैनेज करना होता है, जैसे हमें बहुत टाइट पोनी टेल नहीं बांधेंगे, टाइट ब्रेड्स वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, बहुत सॉफ्ट जो है शैम्पूज और कंडीशनर्स का यूज़ करेंगे ताकि हमारे हेयर्स जो हैं जो ऑलरेडी फॉल हो रहा है उसका फॉल एग्रवेट ना हो जाए। एक्सरसाइज का जो शेड्यूल होता है वो हम इसमें रिकवरी में ऐसे करते हैं कि फर्स्ट 6 वीक्स में हम ये एडवाइस करते हैं मदर को कि आप जो है जेंटल एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग है और सर लेकिन दो तरीके की डिलीवरी की हम बात कर रहे हैं, एक तो जो नेचुरल डिलीवरी हो रही है, दूसरा अगर हम सर्जरी या फिर सी सेक्शन से कर रहे हैं, तो दोनों में रिकवरी टाइम अलग होता होगा, उस हिसाब से एक्सरसाइजेस। पोस्टपार्टम पीरियड भी दोनों का अलग होता है। नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में इट इज अप टू 6 वीक्स और इसमें इंसिजनल मतलब सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी में यूजुअली 8 वीक्स होता है। 8 वीक्स। जबकि अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी वो रिकमेंड करता है 12 वीक्स ऑफ पोस्टपार्टम पीरियड for women who have gone through cesarean. whether vaginal or Caesar, they recommend 12 weeks. और उनका मानना यह है कि कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम की रिकवरी है 12 वीक्स में ही हो पाती है। राइट, नो मैटर कौन सा सिचुएशन। जी। राइट। वेजाइनल की मैं जो बात कर रहा था, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी अगर है तो हम 6 वीक्स तक जेंटल एक्सरसाइजेज शुरू करते हैं। 6 वीक्स के बाद जो हम एक्सटेंसिव एक्सरसाइजेज शुरू कर सकते हैं, जैसे रनिंग है, एरोबिक्स है। और सीजर सेक्शन में, सिजेरियन में क्या होता है कि क्योंकि इंसिजन्स होते हैं तो हमें 6 वीक्स तक हम थोड़ी बहुत माइल्ड एक्सरसाइज तो कर सकते हैं, जैसे केजल एक्सरसाइज मैंने बताया, पेरिनियल मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए टमी एक्सरसाइजेज है, माइल्ड वॉकिंग है, माइल्ड स्ट्रेचिंग है। लेकिन 6 वीक्स के बाद जो पोस्टनेटल चेक होता है उसमें एक बार गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा के ये कंफर्म करना होता है कि हम जो है अभी स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अभी हमारे स्टिचेस की पोजीशन ऐसी है कि हील अप हो गया पूरा, ऑर्गन हमारा हील हो गया है, तो फिर हम उसके बाद उसी हिसाब से स्ट्रेनस एक्सरसाइज के लिए रिकमेंड करते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमें 2 सिचुएशंस पता हैं, 2 तरीके से बेबीज की डिलीवरी हो सकती है, एक तो नेचुरली हो गया और या फिर सर्जरीज के थ्रू हुआ। सर बहुत केसेस देखे हैं हमने जहाँ पे पीपल, जो औरतें, दे आर प्रेफरिंग मोर कि सर्जरी से हो जाए क्योंकि वो जो पेन होता है नेचुरल डिलीवरी में वो अवॉइड कर सके। लेकिन ऑब्वियसली दोनों के प्रोज एंड कॉन्स अलग अलग हैं। तो आई फील ये यहाँ पे हमें ग्रास ब्रेक करना चाहिए और औरतों को ज्यादा प्रमोट करना चाहिए दैट दे शुड ऑप्ट फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल, ताकि नेचुरल बेबी ही ऑर्गेनिकली तरीके से डिलीवर हो रहा है। तो क्या लाइफस्टाइल रखना चाहिए फॉर अ नेचुरल डिलीवरी विदाउट गोइंग फॉर द सिजेरियन वन? देखिए, लाइफ स्टाइल बेसिक चीज़ें वही होती हैं कि आपको जो है रूटीन में ही अच्छी डाइट लेनी है, हाई कैलोरी डाइट्स हैं, फास्ट फूड्स वगैरह हैं, ये सब चीज़ें अवॉइड करना है जिससे हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक सिस्टम जो है ठीक रहता है। रेगुलर एक्सरसाइजेज हमको रूटीन में करनी चाहिए। उसके बाद और जो हमारे पास और दूसरी तरह के जो प्रेशर्स लाइफ में आ जाते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, कुछ सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, कुछ एनवायरनमेंटल फैक्टर्स होते हैं। उन सब चीज़ों को भी हमें बहुत टेक्टफुली जो डील करना चाहिए ताकि हम अंदर से इनिशियली मतलब इनसाइड हम अच्छा फील करते हैं। अच्छा फील करते हैं और हमें ये भी एक माइंडसेट रखना चाहिए कि जो सिजेरियन डिलीवरीज होती हैं इसमें इसके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो आगे चल के हमें प्रॉब्लम कर सकते हैं। जैसे इंसिजनल हर्निया, जिस पॉइंट पे हमने इंसिजन दिया है वो पॉइंट जो है वो हमारा एब्डोमेन का वो वीक हो गया। वो वीक हो गया तो आगे चल के कभी ना कभी हमको प्रॉब्लम कर सकता है। कोई भी स्टमक प्रॉब्लम होगी तो वो प्रॉब्लम कर सकता है। इंसिजन्स जो हैं वो दे कैन टेयर ऑफ, या फिर वहाँ कोई छोटा सा गैप हो गया, उसमें एक छोटा सा मांस से हमारा गट का पार्ट जो है उसमें चला गया तो ऑब्वियसली दैट बिकम्स इंसिजनल हर्निया। वो है। दूसरी बात यह है कि उसमें हमें काफ़ी देर तक कन्फाइंड टू बेड रहना पड़ सकता है। ठीक है। तीसरी बात ये है कि हम कन्फाइंड टू बेड रहते हैं तो हमारी और सारी चीज़ें डिलेड हो जाती हैं। बेबी को जितनी केयर की ज़रूरत होती है उतना केयर हम नहीं दे पाते हैं। बेबी को फर्स्ट डे से ही केयर मिलनी चाहिए। राइट। और हम खुद सेल्फ केयर में ही हम खुद ही जो है दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हैं। राइट। तो हम बेबी को कैसे केयर देंगे।
और जो इनिशियली जो बेबी को केयर मिलती है ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू और जो जेंटल केयर मिलती है स्किन टू स्किन टच से, जिससे बेबी से बॉन्डिंग अच्छी होती है, वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये चीज़ें आगे चल के बहुत अच्छा इफेक्ट देती हैं साइकोलॉजिकली भी और फिजिकली भी। तो विजाइनल डिलीवरी में ये ठीक है कि बहुत पेनफुल रहता है और उसमें वो पेन जो है काफ़ी लेडीज़ बर्दाश्त नहीं करना चाहती हैं, लेकिन उसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं विजाइनल डिलीवरी के। तो वो उसके लिए ही मैं रिकमेंड करूँगा कि लेडीज़ को प्रेफर ये करना चाहिए कि वो विजाइनल डिलीवरी के लिए जाएं। अगर वो नहीं हो पा रही है, रीजंस और भी बहुत होते हैं। मदर चाहती है कि विजाइनल डिलीवरी हो जाए, लेकिन रीजंस और में क्या होता है, कॉम्प्लिकेशंस वगैरह, कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरीज होती हैं। जैसे मान ली कि बेबी का साइज बड़ा है, मदर की पेल्विस का साइज छोटा है, बेबी पास आउट नहीं हो पा रहा, बेबी की पोजीशन ऐसी है, ऑक्सीपिटल एंटीरियर पोजीशन ऐसी होती है जिसमें कि बेबी जो है उसका सिर बाहर की तरफ होता है और जो बेबी का फेस होता है वो स्पाइनल कॉलम की तरफ होता है। वो जो है बेस्ट पोजीशन होती है जिसमें बेबी की नॉर्मल डिलीवरी बहुत इजीली हो जाती है। मान लीजिए पोजीशन नहीं है, ट्रांसवर्स लाई है, ब्रीच है, ब्रीच में क्या है कि बेबी का जो लोअर पार्ट है, लेग पार्ट नीचे है और जो हेड पार्ट है वो ऊपर है, तो उसमें फिर हम लोगों को यही ऑप्ट करना पड़ता है कि एक सीजर ही करना पड़ेगा, जिसमें कि वेजाइनल डिलीवरी के चांसेस कम होते हैं बल्कि रिस्की भी होता है। फिर और भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि कॉर्ड जो है मान लीजिए बेबी के नेक रैप हो गया, सो कॉर्ड की वजह से भी कई बार प्रॉब्लम होती है। कई बार फीटल हार्ट रेट जो अफेक्टेड होता है उसकी वजह से भी हो सकता है। कई बार क्या होता है कि बेबी के चारों तरफ जो फ्लूइड होता है उसको एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, वो जो है कई बार वो इन्फेक्टेड हो जाता है, ये वो एक्सप्रेट हो सकता है। तो ये सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमें कई बार ये डिसीजन लेना पड़ता है कि सिजेरियन करना चाहिए। राइट। तो सर हमने ये पॉइंटर्स तो देखे कि जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो हो सकता है, तो ऑब्वियसली बात है कि हमारे हाथ में नहीं है कि हमें क्या चूज करना है ऑप्शन में। तो सर हमने देख लिया जो कॉम्प्लिकेशंस है वो तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन दुर्घटना होने से पहले जो हमें सावधानी बरतनी है उस पर बात कर लेते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक न्यू मदर को क्या क्या प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। देखिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए जैसा मैंने अभी बताया हूँ कि एक हेल्दी लाइफ स्टाइल रहना चाहिए, साइकोलॉजिकली स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है। रूटीन में जो भी प्रिकॉशंस हर ट्राइमेस्टर में लेने चाहिए वो ज़रूरी है, और एक हेल्दी डाइट, एक हेल्दी एक्सरसाइज शेड्यूल उसको मेंटेन करना ज़रूरी है। तो हमारे क्लोथिंग्स का भी थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है, टाइट फिटिंग क्लोथ्स वगैरह ना हो। इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं तो हम इंटरनली स्ट्रांग फील करते हैं। एक हेल्दी डाइट रहेगी तो इंटरनल स्ट्रेंथ आती है, रेगुलर एक्सरसाइज से बॉडी के मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, जिससे क्या रहता है कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस नॉर्मली होते हैं जैसे होने चाहिए, ताकि वो विजाइनल डिलीवरी को फैसिलिटेट कर सके। हमारे जो ये वाले मसल्स होते हैं, पेरिनियल मसल्स हैं, थाई मसल्स हैं, एब्डोमिनल मसल्स हैं, इनकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज से ये होता है कि जो कॉन्ट्रैक्टाइल पावर होती है यूट्रस की वो मेंटेन रहती है और वो बेबी को इजीली पुश आउट कर सकते हैं। ऐसे ये भी मिथ है कि योगा नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अपने प्रेगनेंसी के थ्रू आउट योगा करते रहते हैं, तो योगा करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए? योगा अंडर योगा एक्सपर्ट करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ्स में तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। जो बीच के 3 मंथ्स होते हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर जिसको कहते हैं, उसमें थोड़ा सा लिबर्टी ले लेते हैं, और लास्ट में जो है जितना माइल्ड एक्सरसाइजेस डेली होती रहेंगे, पेरिनियल मसल एक्सरसाइज भी करते रहना चाहिए, एब्डोमिनल मसल एक्सरसाइज भी करते रहना चाहिए। इतना ना हो कि बहुत प्रेशर लगे, लेकिन आप माइल्ड एक्सरसाइज रेगुलरली करते रहेंगे तो उसमें अल्टीमेटली लास्ट में डिलीवरी ईजी हो जाती है। राइट, ऑलराइट, ओके। विद दिस कमिंग ऑन टू द वेरी लास्ट क्वेश्चन सर, विच इज कि हमने हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी चाहिए और कौन कौन से प्रैक्टिसेस करनी चाहिए उनको तो कवर कर लिया, पर आपके साइड से 5 ऐसे सजेशंस जो आप एक न्यू मदर को देना चाहेंगे जो कि एक रेड फ्लैग है उनकी प्रेगनेंसी के टाइम में, उन्हें टोटली उन सारी चीजों को अवॉइड करना चाहिए। तो ऐसी 5 चीज जो एक प्रेग्नेंट वुमन को अपने प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में अवॉइड करना चाहिए। देखिए, प्रेगनेंसी के टाइम पर फर्स्ट 3 वीक्स में हम लोग ये एडवाइस करते हैं कि कोई मेडिकेशन नहीं लेना चाहिए, एक्सेप्ट ब्लड टेस्ट में कुछ इस तरह का निकल आए, आयरन डेफिशिएंसी निकल आई या कुछ और पैरामीटर ऐसा निकल आया। जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ मदर्स को थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है, उन सब चीज़ों पे ध्यान देना है।
तो इसलिए जब भी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है तो एक बार सारे टेस्ट करा लेने चाहिए कंफर्म करने के लिए कि प्रीवियसली कोई और प्रॉब्लम चल तो नहीं रही, ऑलरेडी द मदर इज़ नॉट डिसीज्ड, तो उसको हम टेक केयर कर सकें टाइम से। दूसरी बात यह है कि मेडिकेशन बहुत सोच समझ के खानी चाहिए, क्योंकि काफ़ी मेडिसिन इसमें जो है बैंड होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो विदाउट डॉक्टर्स एडवाइस कोई मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि रेगुलर एक्सरसाइज, जैसे मैंने बताया है कि रेगुलर एक्सरसाइज, अपनी डाइट पर बहुत अच्छा ध्यान देंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करते रहेंगे। हाई प्रोटीन डाइट लेने से ये रहता है कि हमारी बॉडी की जो रिकवरी है, जो टिश्यू इंजरी है, वो बहुत अच्छी रहती है। तो हाई प्रोटीन में जैसे जो लोग नॉन वेज हैं उनके लिए तो बहुत इजी है, वो तो आराम से फिश, एग, लीन मीट, ये सब चीज़ें ले सकते हैं। और जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं हाई प्रोटीन डाइट में, जैसे जितने भी ग्रेन्स हैं ये सब हाई प्रोटीन होते हैं, बीन्स हैं, पल्सेस हैं, ये सब जो हैं हाई प्रोटीन्स होते हैं। और वैसे तो जितने भी सीजनल फ्रूट्स, सीजनल वेजिटेबल्स हैं, ये सभी में वाइटामिन्स और मिनरल्स अच्छे प्लेंटी में होते हैं। मिल्क प्रोडक्ट्स, जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ये भी बहुत नरिशिंग होते हैं। तो इन सब को जो है लेने से हमारी बॉडी उस स्टेज के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि वो जो है वो जो फेज होता है ना, जिस टाइम जो डिलीवरी का फेज होता है, दैट इज अ फेज ऑफ एक्साइटमेंट एंड जॉय, लेकिन नर्वसनेस होती है, एंजाइटी भी होती है, एक फियर भी होता है। यही लगता रहता है कि बेबी हमारा आराम से हो जाए, कोई मिसहैप ना हो, ना मदर के साथ ना बेबी के साथ, और उसकी और मदर की दोनों की रिकवरी नॉर्मली हो जाए। तो उसके लिए हमें तैयार रहने के लिए ये सारी चीज़ें फॉलो करनी होती हैं। तो डाइट का ध्यान देना होता है, एक्सरसाइज का ध्यान देना होता है, मेडिसिन का ध्यान देना होता है, टाइमली वैक्सीनेशंस का ध्यान देना होता है, जो वैक्सीन जो लगते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, स्पेशली टेटनस का इंजेक्शन लगता है, उसका ध्यान देना होता है। इसी के साथ साथ और जो रूटीन है हमारा, जो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हैं उनसे बचना है। फैमिली में किसी फैमिली मेम्बर में, फ्रेंड्स में किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है, हम कोई काम नहीं कर पा रहे, हमें उनके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो हमें हेजिटेट नहीं करना चाहिए, उनसे सपोर्ट लेनी चाहिए, एडवाइस लेनी चाहिए। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि अगर हमें किसी भी तरह की एंजाइटी हो रही है, कोई डिप्रेशन हो रहा है, वहाँ शेयर कर सकते हैं। हमें कोई अगर फीलिंग आ रही है, कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है, तो हमें इमीडिएटली फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर करना चाहिए, और उनसे जो है और भी अच्छे जो बातचीत हैं वो शेयर करनी चाहिए, ताकि हम इंटरनली हेल्दी रहें। अगर हम हेल्दी नहीं हैं तो फिर बेबी के भी हेल्दी होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि हम फिर उस फेस को ठीक ढंग से निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है ना, उसका जो है ठीक ढंग से कैरी ऑन करना बहुत ज़रूरी है, तभी एवरीथिंग इज नॉर्मल। आप अपना एक बार एक्सपीरियंस बता दीजिए, कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो मैं वो बोल दूँगी। मुझे क्लिनिकल एक्सपीरियंस तो मोर देन 41 ईयर्स का है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल सब में है। ठीक है। ऑलराइट एवरीबॉडी, सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको सर के दिए हुए सजेशंस अच्छे लगे हों और आप सर को इन पर्सन मिलने चाहते हो, कंसिडरिंग कि सर के पास 41 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, और अगर आप अपनी पोस्टपार्टम या फिर इनफैक्ट डिलीवरी के फेज को बहुत ही बैलेंस रखना चाहते हो, तो यू कैन डेफिनेटली गिव हिम अ विजिट। सर के क्लिनिक का जो एड्रेस है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और मैं उम्मीद करूंगी कि हम आपके सारे क्वेरीज को इस वीडियो के थ्रू अच्छे से आंसर कर पाए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जाने से पहले इस वीडियो को एक लाइक देना मत भूलना। कमेंट करके हमें जरूर बताना कि आपके क्या क्वेश्चंस और क्या क्वेरीज हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम उन सारी क्वेरीज को अच्छे से आंसर कर पाए, और मेक श्योर दैट यू आर अ वुमन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके, बाय एवरीबॉडी।